ladies and gentlemen, welcome. Namaste. Let me start this chapter on poverty by checking your knowledge. Try answering this question. What I'll do is that I'll write the name of the committees, and you have to find out that which committee was not related to poverty. Right? So the chapter here is very important chapter. I guarantee you search all the books, you will not find what I give you in this lecture at Super Props. Super simplified. Right. Question is, which of the following committee or committees is or are not related to poverty estimation in India? Poverty estimation in India. Now I list the name of the committee and you find out which of these. And then at the end of the lecture, you can check your progress whether you know these committees or not. Super simplified. You don't have to mug up what these committees' recommendations are. I'll give you a concept of URP, MRP, MMRP, and you can fit in all the committees in these concepts. Finished, done. This is no nonsense approach. Super simplified. Okay. A. Dandekar and Rath. Dandekar and Rath committee. लिख लो आगे कमेटी, अब लिख ही लोगे, इतने तो बड़े हो गए अब. B. अलग कमेटी. C. लाकड़ा वाला कमेटी. D. तेंदुलकर कमेटी. E. C. रंगा कमेटी. C. रंग Rajan committee. Okay. F. S. R. Hasim committee. G. N. C. Saxena committee. लिख लिया? लिख लो भाई, लिख लो. एक जगह सारी कमिटीज मिली है. ऐसा भूखे की तरह बिहेव करो. वेरी हंग्री, समथिंग इज देयर टू ईट, जस्ट गो एंड ईट इट. कुछ भी मिले खा जाओ. नॉलेज के दाम में ऐसा नहीं है जाके छोला भटूरा खा लिया. ओके, these are the committees and you have to find out the which of these committees are or is not related to poverty estimation in India. My answer is, you have to answer. To get the answer, you watch this video. Okay, I give you the answer. All the committees are related to the poverty estimation, so our answer would be none of the above. Right? So rather than giving you the detail of please write down the committees related to the poverty estimation in India, these are the committees which are related to poverty estimation in India. This lecture, of maybe 1 hour lecture, I'll explain each and everything in 1 hour, all the committees. We will not take SR Hasim and NC Saxena, but till your C. Rangarajan, we will cover in this lecture. SR Hasim and NC Saxena I'll briefly explain later on. To understand these committees, first we understand what poverty is. Poverty related some of the terms, and then we'll find out how many brothers and sisters are poor in our beloved country. ऐसे ही तो पता करेंगे. तो चलो देखते हैं. पहली बात, सीधी बात, नो बकवास. व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस गरीबी और गाय पे तो ऐसे आता था तीसरी क्लास चौथी क्लास में. राइट ऑन पॉवर्टी और गाय, दैट्स इट. तो सब जानते हैं, गरीबी पे लिखा भी होगा सबने. व्हाट इज पॉवर्टी? फॉर अस, फॉर
our understanding, poverty is the lack of something. Poverty is the lack of something, lacking in something. That is poverty. अब आप बोलोगे सर poverty is when someone is not able to fulfill the basic necessity of life, that is known as आपका poverty. वो जो होती है वो specific poverty होती है, that is your absolute poverty. So poverty is, अभी ये समझो, lacking of something. भाई इंटेलेक्चुअली पुअर हो सकता है ना, दिमाग नहीं लेक, दिमाग जिसका नहीं है, cognitive form में that person can have. But the larger connotation when you say poverty, we refer it to your extreme form of your economic inequality, right? So this is, poverty is nothing but extreme form of your economic inequality. Inequalities can be of different types. They can be biological inequality, but here our poverty is your economic inequality. When this economic inequality is of extreme form, when this economic inequality is of extreme form of economic inequality is when some people are not able to fulfill basic necessities or need of life. ऐसे ही लिखोगे ना. But when someone is not able to fulfill the basic necessities of life, and certainly there is a stratification, so other section of the society enjoys, maybe 10%, maybe 20%, maybe 50% of the society. This is the extreme form of your economic inequality. This is known as your absolute poverty. So if you have to define absolute poverty is nothing but when someone is not able to fulfill the basic needs of life. That is your absolute poverty. याद रहेगा? इसमें क्या याद करना है? किसी गरीब, आंख बंद करो, किसी गरीब को याद करो और समझ लो वो गरीब क्यों है, पता लग जाएगा. उसके बाद खाने के पास नहीं है. बेसिक नीड्स क्या होती है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. अभी बेसिक नीड्स का भी डेफिनेशन हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो जाए. हमारी सोसाइटी अब जो है, अब ये मानने लगी है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी क्या है? बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, क्लीनलीनेस, हाइजेनिक कंडीशंस, ये सब आ गया बेसिक नीड्स में. मैं मॉस्लोस वाले बेसिक नीड में नहीं जा रहा हूं. एमबीए किया होगा आपने. मॉस्लो कहता है बेसिक नीड्स आर आपकी रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स. 4 ही बेसिक नीड होती है. उसके बाद की नीड ऊपर की नीड होती है. हमें इकोनॉमिक्स में या फिलोसफी नहीं है और मैनेजमेंट नहीं, राइट? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, and when people are not able to fulfill their basic needs is known as your absolute poverty. The second part is, the other term that we have to understand is your relative poverty. Now when I say that the definition of need or necessity is evolving, this evolving need or necessity is nothing but what I am saying, that I am taking this absolute poverty towards the realm of relative poverty. So if you have to define relative poverty can be defined in a way that relative poverty क्या है? relative poverty को कैसे डिफाइन करोगे? When someone is not able to lead a life that is considered a normal in a given society. When, दूसरा कलर लो क्या? लो खुश रहो. बड़े उदास लग रहे हो आज. When someone is not able to lead a life, मतलब it means the reasons are economic, right? Lead a life that is considered normal in a, that is considered normal in a given society. कोई सोसाइटी, let's say
any society, let's say they consider it normal to have a car. So if all the people have a car in a specific locality or a specific country, and someone does not even have a motorcycle, then that family is poor, despite they having good access to your, let's say, roti kapda makan, chicken chukan, अगर ये सब खाता है, फिर भी अगर बेसिक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नहीं जीते, तो दैट इज कंसिडर्ड एज आपका रिलेटिवली पुअर. नाउ आप देखो, मैंने आई मेंशन्ड यू कि यहां से अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो ये क्या है, ये रिलेटिव पॉवर्टी है, राइट. सो पॉवर्टी का डेफिनेशन आप सारी कमिटीज के साथ देखोगे, जो पहले आई है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटिव पॉवर्टी की तरफ सारी कमिटीज है जो मूव करती है. फॉर अस, फॉर इंडिया, व्हाट मैटर्स, विच पॉवर्टी मैटर्स इज योर एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अभी हमारे लिए अभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, हमें इसका ध्यान रखना है. इन फ्यूचर वी विल टेक केयर ऑफ योर रिलेटिव पॉवर्टी. 3 टर्म, पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड योर रिलेटिव पॉवर्टी. चलो बढ़ते हैं आगे, 2 टर्म और देखते हैं. आपने कहीं सुना होगा हेड काउंट रेशियो. पॉवर्टी का हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो कुछ नहीं है, टर्म है, मतलब जब आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में कैलकुलेट करते हो, दैट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टोटल पॉपुलेशन, ये क्या हो गया आपका हेड काउंट रेशियो. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन फाइंड योर परसेंटेज. हेड काउंट रेशियो टर्म कहीं आ जाती है तो घबराना मत, ऐसा नहीं ढूंढ रहे हैं विकिपीडिया में जाके पागल हो गए, मिल नहीं रहा हेड काउंट क्या होता है, सिर की पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट इज योर हेड काउंट रेशियो. इसके अलावा एक और टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉवर्टी गैप. पॉवर्टी गैप अभी आते हैं, हम सारी कमिटी के ऊपर आएंगे. पॉवर्टी गैप. पॉवर्टी गैप क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी गैप? गैप का मतलब डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस के लिए पहले आप पॉवर्टी लाइन खींचनी पड़ेगी, राइट. लेट्स कंसीडर दैट दिस इज द पॉवर्टी लाइन. अभी मैं बोलूं पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, पहले पॉवर्टी लाइन समझो, फिर मैं अगली उसके ऊपर आपको पहले पॉवर्टी लाइन समझा देता हूं. हाउ डू यू फाइंड आउट पॉवर्टी लाइन? फॉर पॉवर्टी लाइन यू रिक्वायर पॉवर्टी लाइन बास्केट. अरे सो तो नहीं गए, नहीं सो. पॉवर्टी लाइन बास्केट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. कोई कमिटी रिकमेंडेशन करेगी, रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी गवर्नमेंट फाइंड्स आउट. प्लानिंग कमीशन पहले करती थी, अब नीति आयोग करेगी. जो पॉवर्टी है उसका आपका जो है रिलीज, डेटा रिलीज नीति आयोग करेगी, पहले प्लानिंग कमीशन करती थी. पॉवर्टी लाइन बास्केट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, व्हाट दे डू दैट दे मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स. क्या होता है, आइटम्स का लिस्ट बनाया जाता है. दिस लिस्ट ऑफ द आइटम्स, लेट्स से ए बी, इतना घी, इतना गाजर का हलवा, ये गरीब लोगों को मान लो दाल, दूध, बीड़ी, सिगरेट, whatever is required. This list, according to the recommendation of committee, is known as your poverty line basket. तो basket का मतलब रियल टोकरी मत समझ लेना. Basket is list of items, right? This list of items which are essential, which are required. अगर ये नहीं है तो वो फैमिली क्या है, गरीब है. Now, if we have to find out the poverty level, then what we do that we put value, price of item A, whatever items are being told to us. सारे आइटम का क्या करो, प्राइस निकाल लो. प्राइस कैसे निकालो, इसका प्राइस सी होगा, प्राइस का ए, प्राइस बी, इन सब का प्राइस जब होगा तो इनटू जितना क्वांटिटी ये चाहिए इनटू प्राइस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन आइटम कितने रुपए में आएंगे. सो व्हाट इट वुड टेक, जो वैल्यू और जितना रुपया आपको चाहिए या जितना इनकम आपको चाहिए टू परचेज ऑल द आइटम्स इन दैट पॉवर्टी लाइन बास्केट, वो इनकम अगर आपकी है तो यू आर नॉट पुअर. इफ योर इनकम इज बिलो दिस स्पेसिफिक लेवल, दैट इज योर then you are below your poverty line. So poverty line is nothing but it is the value of all the items which are there in your poverty line basket. If someone is not able to afford these, if someone is not earning enough to afford the items which are there in the poverty line basket, that person is considered below poverty line. बात समझे क्या? अरे कुछ नहीं है, poverty line एक कमिटी
तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी, उन्होंने कहा ये 6 आइटम चाहिए, अगर ये 6 आइटम जिसके पास नहीं है वो गरीब है। यहां तक क्लियर है। उन 6 आइटम का कितना वैल्यू होता है, मैंने कह दिया कि 40 रुपए मान लो दिन का होता है, उन्होंने 1000 रुपए महीने का, 33 रुपए। 33 रुपए दिन का पॉवर्टी लाइन बास्केट है, उसको उसमें जो चीजें खरीदने का हो गया। इफ आउट ऑफ 33 रुपीज इफ समवन इज अर्निंग 32 देन दैट पर्सन इज बिलो दैट पॉवर्टी लाइन। अगर उससे कोई ऊपर है तो वो है अबव पॉवर्टी लाइन। अब उसके ऊपर है, अगर ऊपर मीन 33, एक्जैक्टली 33, कैन यू कॉल दैट पर्सन ए बीपीएल? बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ऊपर पॉवर्टी लाइन से नहीं होता ना, सो वन हैज टू बिलो दैट पॉवर्टी लाइन। बट वो क्या गरीब से थोड़ा कम है, 1 पैसा कम कमा लेता तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाता। ये बात समझे क्या? ये बात समझ गए तो चलो वापस। अभी तक हमने पॉवर्टी लाइन बास्केट देखा, पॉवर्टी लाइन देख ली। मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, मान लो देयर द पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, हम मान लेते हैं 5 ही लोग गरीब है। लो 6, 7, 8 इस तरह से ऑल पीपल आर समवेयर, यहां पे 0, यहां पे आपका लेट्स से 33 रुपीज पर डे। मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, अभी हम सारी कमेटी की अलग अलग रिकमेंडेशंस है। इफ समवन इज अर्निंग लेट्स से 10 रुपीज, अर्निंग नहीं अर्निंग, इफ पर्सन इज स्पेंडिंग 10 रुपीज, वो पर्सन 10 रुपीज अर्निंग हम मानते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर माना जाता है। उधार लेके भी स्पेंड कर रहा है तो वो एक्सपेंडिचर में आएगी। देखो इफ समवन इज अर्निंग 10 रुपीज वी आर अंडरस्टैंडिंग योर पॉवर्टी गैप। मैं आपको पॉवर्टी गैप समझा रहा हूं। हम इसका चेंज कर लेते हैं कलर। आ जाओ, पॉवर्टी गैप क्या होता है? पॉवर्टी गैप बोले तो यू फाइंड आउट हाउ फार दिस इंडिविजुअल इज फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। कितना दूर है यह आदमी? 10 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब 10 रुपए कमा रहा है, और पॉवर्टी लाइन 33 रुपए है। हाउ फार दिस पर्सन इज फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन? ये डिस्टेंस मीटर्स में नहीं होगा, ये रुपए में डिस्टेंस होगा है ना। रुपए में कितना डिस्टेंस है? 33 माइनस 10 यानी वॉट एवर 23। It means what I want to say that poverty gap is nothing but additional income required for a person to come out of poverty. So for this person also, let's say this person earns 30 rupees. 30 रुपए वाले को कितना रुपए चाहिए पॉवर्टी से बाहर आने के लिए? 3 रुपए। So for this person poverty gap is 3 रुपए, 3 रुपीज। मान लो आप 31 रुपए कमा रहे हैं और पॉवर्टी लाइन 33 रुपए है, आपको कितना रुपए चाहिए गरीबी से बाहर आने के लिए? 2 रुपए। That 2 rupees is poverty gap. Now what you do that the aggregate poverty gap, जो aggregate poverty gap है, जो aggregate poverty gap है वो क्या है? It's nothing but आप सबका poverty gap कैलकुलेट कर लो। It is the summation of all individuals poverty gap, है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि ये एग्रीगेट पॉवर्टी गैप है, इट्स नथिंग बट ऑल द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल टू ब्रिंग ऑल पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में बोलूं, आई से द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू टेक, भाई सारा रिसोर्स का कैलकुलेशन ऐसे ही तो हुआ ना। इसको 3 रुपए दिया, इसको 25 रुपए दिया, इसको मतलब 23 रुपए दिया, समवन एल्स हैज टू गेट 25 रुपीज, समवन 1 रुपीज, समवन 33 रुपीज। सो पर डे रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। सो पॉवर्टी गैप इज नथिंग बट poverty gap is nothing but poverty gap क्या है? These are your resource requirement to take all persons out of poverty for a given period of time, to take all persons out of poverty फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझे क्या? ये था पॉवर्टी, तो पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ फंडे। अब कुछ और फंडे समझते हैं, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। यूआरपी, एमएमआरपी और एमएमआरपी, इन तीनों से पूरी की पूरी कमिटीज आपको समझ में आ जाएगी। लिखो, टेबल बनाओ अपनी, उसके अंदर यूआरपी क्या है? यूनिफॉर्म रिकॉल और रेफरेंस पीरियड। क्या बोलते हैं यूआरपी को? यूनिफॉर्म रिकॉल और रेफरेंस पीरियड। तो ये क्या हो गया हमारा? यूआरपी। ठीक है।
एमआरपी है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, कुछ नहीं है मैक्सिमम रिटेल। एमआरपी है मिक्स्ड, हाँ मिक्स्ड रिकॉल और रेफरेंस, यही लिख लेना, रेफरेंस पीरियड। मैं आपको सारी कमिटीज समझा रहा हूं, यहां वहां रटने को लगे पड़े हैं, किताबों को रट रहे हैं, शाम को छत पे घूम रहे और रट रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है उसका। आईएएस बन रहे, कितना रट के करोगे? रोज इतना सारा इंफॉर्मेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, रट लोगे कि सबको? इसको आराम दीजिए साहब, फ्रेम घुसा दीजिए इसमें, समझ जाएगा सब। यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। एमएमआरपी क्या है? मॉडिफाइड नॉट मॉडिफाइड, मोदी जी का नाम है मॉडिफाइड मिक्स्ड, हंसते नहीं मोदी जी का नाम, नो लव। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड, ये 3 चीजें हैं सर। पूरी पॉवर्टी खत्म। कितना दिनों से ढूंढ रहे थे किताबों में, कब मिलेगा, कहां मिलेगा पॉवर्टी। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड इज नथिंग बट, क्या होता है? अगर पहले यूआरपी जानेंगे तब समझेंगे ना मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या होता है। व्हाट इज यूआरपी? देखो, टू कैलकुलेट द पॉवर्टी, आप सर्वे करने जाता है, यू आस्क द कंसर्न फैमिली दैट हाउ मच दे स्पेंड, राइट? So if your survey is only about let's say one item, एक या 2 आइटम के लिए होगा, तो आप पूछ लोगे कि 1 महीने में क्या खर्चा हुआ, फ्रॉम देयर यू फाइंड आउट द पॉवर्टी। तो सिंपलेस्ट मेथड इज योर यूआरपी, यानी अर्लियर कमिटीज है यूआरपी यूज करती थी। अब देखो होती क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। लेट्स से यू आर डूइंग द सर्वे, इन दिस सर्वे प्रीवियस 30 days ऑल एक्सपेंडिचर। सो यूआरपी जो है ये एक तरह का ये है, क्या है? ये सारे के सारे सर्वे हैं, क्या है? सर्वेस हैं, सारे का सारे सर्वे है। सो इन लास्ट 1 ईयर, इन लास्ट 1 मंथ, प्रीवियस 1 मंथ, प्रीवियस 30 डेज, 1 महीने में 30 दिन होते हैं ऐसा सुना है। प्रीवियस 30 डेज एक्सपेंडिचर, you calculate previous 30 days expenditure, you ask any family पिछले 30 दिन में कितना खर्चा किया। मान लो पॉवर्टी लाइन बास्केट कोई कमेटी ने दी 40 रुपए, आपने उस फैमिली को पूछा, आपने 40 रुपए प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, पर कैपिटा। सो इफ यू आस्क दैट फैमिली कि आपने पिछले 1 महीने में कितना खर्च किया, और वो फैमिली आपको कहती है कि वी स्पेंट लेट्स से 200 रुपीज per day, and that family is a family of let's say 10 members, so per day is 20 rupees, so that 20 rupees is less than हमारा क्या 40 रुपए जो था, it means that family is below poverty line। तो 10 मेंबर एक साथ आपका बीपीएल में कैलकुलेट हो गया। बात समझ रहे क्या? यूआरपी प्रीवियस 30 days ऑल एक्सपेंडिचर्स, कौन सा एक्सपेंडिचर्स? ऑल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है ना, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ इट, और वो लिमिटेशन ये है कि मान लो इट डज नॉट कैप्चर योर एक्सपेंडिचर ऑन लेट्स से समथिंग दैट वाज डन प्रीवियसली, और सबको 1 महीने का एक्सपेंडिचर हो सकता है याद रहे, नहीं रहेगा 1 महीने तो, लेकिन इट डज नॉट कैप्चर द एक्सपेंडिचर ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स इंक्लूडिंग योर लेट्स से क्लोथिंग, फुटवियर, योर ड्यूरेबल्स। कोई टीवी खरीद के लाया 2 महीने पहले, वो तो इसमें कैप्चर नहीं हुआ ना, और टीवी हर रोज तो नहीं खरीदी जाती। कोई कपड़े खरीद के लाया, कपड़े, और यू परचेज क्लोथिंग्स ओनली ऑन फेस्टिवल्स, त्योहार कोई खरीदते हो, कुछ लोग तो रोज खरीद लेते हैं, उनको पूछने का भी जरूरत नहीं आप गरीब है कि नहीं है। ये शॉपिंग गरीबी का हॉबी नहीं हो सकता सर, ये कंजम्पशन सोसाइटी का पैटर्न है, बट वो मॉडर्न गरीबी है। देखो 30 days expenditure does not capture your, it does not capture expenditure on your many of the things including let's say 2 महीने पहले आप एजुकेशन का फीस दिए, स्कूल एजुकेशन का फीस, और आपने हो सकता है मोस्ट लाइकली आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए। सो इफ यू वर देयर
इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ये मिस कर गया यूआरपी, बट यूआरपी एक ही चीज का है, लिमिटेड यूज के लिए है. सो दैट देयर इज अ नीड टू देयर वाज अ नीड टू चेंज, टू मेक सम चेंजेस इन यूआरपी. सो देयर केम योर एमआरपी. अभी यूआरपी ज्यादा समझ में आएगा जब आप इन दोनों को समझोगे. एमआरपी में होता है नंबर 1 प्रीवियस 1 ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन 5 आइटम्स. और ये 5 आइटम्स है, क्लोथिंग लिखो, आपने जो कपड़ा पहन रखा है उसको देखो. देन फुटवियर, आपने जो चप्पल पहन रखी है उसको देखो. चप्पल जूता कुछ तो पहन रहा होगा, याद रह जाएगा. क्लोथिंग, फुटवियर, देन योर ड्यूरेबल्स. लास्ट 1 ईयर में you ask a family that in previous 1 year how much is your expenditure on clothing, how much is your expenditure on footwear, how much is your expenditure on durables. Durables are your, let's say, refrigerator, TV, radio, mobile phone, बहुत सारी चीजें ड्यूरेबल्स है. टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट नॉन ड्यूरेबल्स में आता है, ये एफएमसीजी है. देन योर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ. क्या होती है? एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ. यू आस्क अ फैमिली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मॉडिफाइंग दिस. सो इट इज नोन एज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. मिक्स्ड मीन्स 1 ईयर एंड योर 30 डेज. दो चीजों का हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. 30 डेज में इन चीजों को छोड़ के प्रीवियस 30 डेज में अदर एक्सपेंडिचर. याद रहेगा. सो एमआरपी इज बेटर देन यूआरपी बिकॉज इन प्रीवियस 30 डेज सम फैमिली माइट नॉट हैव स्पेंट some amount on, let's say, clothing and footwear, but their expenditure would have been disproportionate in terms of your clothing, footwear. So this has to be captured. So in terms of the expenditure per capita or a family expenditure, MRP captures expenditure in a better way than your URP. So MRP is better. तीसरी मेथड है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस. ये रिकॉल या रेफरेंस याद रहना है, रिकॉल या रेफरेंस पीरियड. ये भी एक तरह का सर्वे. यू गो एंड आस्क पीपल क्या खर्च किया क्या नहीं करा. नाउ हाउ डू यू मॉडिफाइड योर मिक्स? देयर इज अनदर वे टू मॉडिफाई इट बिकॉज मेनी पीपल, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर इन योर एमआरपी एंड दैट प्रॉब्लम इज, वो प्रॉब्लम क्या है कि पीपल आर नॉट इन अ सिचुएशन, पीपल आर नॉट इन अ सिचुएशन to tell you exactly what was their food expenditure, especially your poor people are not in a situation to exactly remember their food expenditure in previous 30 days. अरे आपको पूछो पिछले 1 महीने में खाने पे क्या क्या खर्च हुआ, आपको याद है कितनी बार आटा लाए, कितने बार मैंगो जूस पी के आए, कितने बार आपने जो है वहां पे आइसक्रीम खाई? यू डोंट रिमेंबर दिस, राइट? सो देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन इट. So there is no perfect capturing of this. So to capture these perfectly, they have kept for modified for 1 year. They have kept all these 5 items. तो अब लिख लेना, मैं क्या यहाँ डिटो का डिटो लिखूंगा नहीं ना. All these 5 items यहाँ रहेगा. इन्होंने एक 7 डेज का कंसेप्ट इसमें डाला है. मॉडिफाइड मिक्स में 7 डेज में फूड रिलेटेड एक्सपेंडिचर. तो इन्होंने किया कि पिछले 7 दिन का हम फूड रिलेटेड एक्सपेंडिचर से वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इनका फूड एक्सपेंडिचर क्या है, इनका कैलोरी इंटेक क्या है. एंड देन 30 डेज में इनको छोड़ के अदर एक्सपेंडिचर. भाई याद रहेगा, भाई बहन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी, इसके बाद नहीं याद रहता है, माफ करो अपने आप को. कोई बात नहीं, डू द रिविजन. वापस वीडियो चालू करो शुरू से. यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी. अब मैं देता हूं आपको जादू की छड़ी. जादू की छड़ी यह है कि यूआरपी मेथड वाज बीइंग यूज्ड बाय दांडेकर एंड रथ कमिटी. दांडेकर एंड रथ कमिटी. अच्छा, जो साइड में नोट्स अपलोडेड है ना, द नोट्स आर अपलोडेड, राइट?
these notes has to be downloaded, इसलिए अपलोड किया है, एंड यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस. आपने अपना स्मार्ट मोबाइल में पढ़ रहे हैं, सॉरी सर, अब प्लीज टेक द फोटोकॉपी, प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स एंड keep these notes in your hand and then study what I am telling. Refer to the slides. Slides are given. Slides are there. Pages are there. The finest notes and the finest lecture on Indian economy. Now, other expenditure, 30 days, 1 year, 7 days, you have your this. So, Dandekar and Rath committee used URP method. याद रहेगा, दांडेकर एंड रथ कमेटी बहुत पहले आई थी 1971. अभी देखेंगे सारी कमेटीज. फिर आपकी अलग कमेटी ऑल्सो यूज यूआरपी मेथड, तो यही लिख लो इसके नीचे. एंड देन योर लाकड़ा वाला कमेटी, लाकड़ा वाला ऑल यूज्ड योर यूआरपी मेथड. ये लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व. 3 कमेटी हो गई क्लियर. 3 कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी है, 3 कमेटी यूआरपी यूज करती है. ये 2 सवाल बन गए. यूपीएससी विल नॉट आस्क यू कि व्हाट वाज द पॉवर्टी रेट अकॉर्डिंग टू योर दांडेकर एंड अलग, वो सब चला गया. सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कमेटी पॉवर्टी से रिलेटेड सारी कमेटी याद रखनी है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में दोनों में पॉवर्टी आती है. पॉवर्टी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल फिलोसोफर्स, पॉवर्टी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल इकोनॉमिस्ट, पॉवर्टी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ पॉलिटिशियंस, मोरलिस्ट. सब गरीबी की बात करता है, गरीब के लिए कुछ करो. पॉलिटिशियन तो रोज गरीब के लिए बोलता है कुछ न कुछ. आज हमने भी बात कर ली. पहला चैप्टर होना चाहिए था मेरा पॉवर्टी, बट मेरे को उससे पैसा थोड़ा मिलता है. मैं तो जेन्युइनली क्या आना चाहिए वो बात कर रहे हैं. ऑल दीज कमिटीज यूज योर यूआरपी. देखो एमआरपी जो है वो मेथड यूज किया है तेंदुलकर कमेटी ने. सुरेश तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर नहीं है. तेंदुलकर कमेटी यूज्ड योर एमआरपी मेथड. इफ आई से व्हाट तेंदुलकर कमेटी हैड यूज्ड एमआरपी मेथड, एंड देन उसके बाद आप लिखना एमआरपी मेथड में क्लोथिंग, इट्स योर 1 year कैलकुलेशन ऑफ योर एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कैन बी derived by using these 5 fixed things and your 30 days other expenditure. तेंदुलकर कमेटी फिनिश 2005. बात समझ में आई क्या? ये इंस्टीट्यूशनल हेल्थ क्या हुआ? डिड आई एक्सप्लेन इट टू यू? इंस्टीट्यूशनल हेल्थ इज नॉट जो भी गोली आप खा लेता है वो नहीं. इंस्टीट्यूशनल हेल्थ इज जस्ट नॉट टेकिंग अ मेडिसिन. इंस्टीट्यूशनल हेल्थ इज ओनली व्हेन यू हैव हॉस्पिटलाइज्ड एंड द एक्सपेंडिचर दैट गोज इन, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशनल हेल्थ. याद रहेगा? और क्या बचा? कुछ बचा? कम टू मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड. मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड ये कौन करता है? ये जो लेटेस्ट कमिटी सी रंगराजन कमिटी ने कौन सा मेथड यूज किया था? मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, MMRP. एक और डिफरेंस है, यह फंडामेंटल. इनकी जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल अप्रोच है. रंगराजन की अप्रोच है वो फैमिली ऑफ 5 अप्रोच है. दैट थिंग आई विल डिस्कस, वो मैं बात करेगा. यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यूआरपी, एमआरपी एंड एमएमआरपी पक्का? लेट्स मूव अहेड. Or I'll make a separate video on the committees, right? So far what we have studied, poverty. What is poverty? Absolute poverty, basic necessities fulfill होता है. Relative poverty, when the relative standards are maintained. ठीक है, let's do the revision. The number of committees which are there, you must know, you must remember. Then there are 3 important concepts. Poverty line basket, you know, the gap from poverty line and the poor. So the resource requirement can be found out by your poverty line. अगर आप अनिल कपूर बन जाते हैं नायक फिल्म में और आप बोलोगे गरीबी कम करना है, कैसे गरीबी कम करोगे? जब आपको पता ही नहीं है तो आप अब चीफ सेक्रेटरी को बोलोगे कि गिव मी दी डेटा ऑन व्हाट? ऑन poverty gap.
The moment he give you poverty gap, you transfer the required amount into their Aadhaar enabled bank account. For one day poverty is gone, next day you resign. ठीक है, वो फिल्मों में होता है ऐसा, बट रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है. This is one way of reducing poverty. Other way of reducing poverty is also there. मैं बात कर रहा था एक क्लास में, a student told me, sir, one way is also there to reduce the poverty. मैं बोला क्या भाई, मुझे लगा कुछ चमत्कार करने वाला है. बोला सर पॉवर्टी लाइन को कम कर दो. पॉवर्टी लाइन को कम कर दो, कुछ लोग ऊपर दिख जाएंगे अपने आप. Oh, that's not correct. That's immoral too, you see. If you cannot reduce the poverty, at least do not project that you have reduced it just by this changing your statistical method. Fine. After that, we have looked at URP, MMRP, MRP and MMRP. URP is very simple, where the methodology is to find out one or two things, and that is only for last 1 month expenditure. MRP, your 1 year and your 30 days. MMRP is your 7 days food expenditure. Speak with me. Your 30 days other expenditure, and 1 year your 5 items, which are your clothing, footwear, durables, institutional health and education. URP कौन सी कमिटीज यूज की है? दांडेकर एंड रथ अलग, एंड योर लाकड़ावाला. MRP is being used by your Tendulkar, and MMRP is used by Rangarajan. In the next lecture, I am going to talk about these committees' recommendations, 2-3 committees, what the recommendations are, and then we'll talk about the poverty data that is there. So in the next lecture, you will know that how many, the head count ratio, how many brothers and sisters in India are poor, right? Then after that lecture, we will be talking about your multidimensional poverty index. Thank you. God bless you and the poor which are there in India by any committee, from the recommendation of any committee. Okay, thank you.